Good morning, students. Today I'm going to continue chapter number 2, Acids, Bases, and Salts, part 2. The first topic is strong acids. An acid which is completely ionized in water and produces H positive ion is called strong acid. Strong acid वो होते हैं जो कि वाटर में डिज़ोल्व करने पर H पॉजिटिव आयन हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एट्सेट्रा. Weak acids, and weak acid is partially ionized in water and thus produce a small amount of hydrogen ions. It is known as weak acid. Weak acids वो होते हैं जो वाटर में डिज़ोल्व करने पर कम हाइड्रोजन आइंस में डिसोशिएट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड एट्सेट्रा. When a concentrated solution of acid is diluted by mixing water, then the concentration of the hydrogen ions or the hydronium ion is H3O negative ion. Because H positive ion is very reactive, so that it react with water to give H3O negative ion. H3O positive ion, and this is called the hydronium ion. So the concentration of the hydrogen ion or hydronium ion per unit volume decreases. जब हम कंसनट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करते हैं वाटर मिक्स करके तो उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है. इसमें पर यूनिट वॉल्यूम हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन्स की कंसंट्रेशन कम हो जाती है. नाउ bases are bitter in taste, so have soapy touch and turns red blue litmus to blue and give hydroxide ions in aqueous solution. बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो कि कड़वे होते हैं, मोस्टली साबुन की तरह चिकने होते हैं. ये रेड लिटमस को ब्लू में कलर में कन्वर्ट कर देते हैं और ये OH नेगेटिव आइंस वाटर सॉल्यूशन में देते हैं. फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कॉस्टिक सोडा भी कहलाता है ये, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, etc. Now, properties of bases. They have bitter taste, soapy in touch, they turn red litmus to blue, and they conduct electricity in aqueous solution because OH ions are present in aqueous solution. Chemical properties of bases. Number 1, reaction of base with metals. When alkali metals react with when alkalis react with metals, it produces salt and hydrogen gas. जब कोई alkali यानी बेस जो है वो मेटल से रिएक्ट करता है देन उस मेटल का सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है. फॉर एग्जाम्पल sodium hydroxide gives hydrogen gas and sodium zincate when react with zinc metal. जब जिंक मेटल से सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन होता है तो सोडियम जिंकेट एक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है. एंड सिमिलरली व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम मेटल then sodium aluminate is formed and giving the hydrogen gas. Sodium aluminate Na2AlO2, NaAlO2, it is also a salt. Now next reaction, reaction of base with oxides of known metals.
नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटल के ऑक्साइड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, तो ये एसिडिक होती हैं नॉन मेटल ऑक्साइड्स। फॉर एग्जांपल, कार्बन डाइऑक्साइड is a non-metal oxide. When carbon dioxide is dissolved in water, it produces carbonic acid. ये कार्बोनिक एसिड देती है, इसका एक्वस सॉल्यूशन कार्बोनिक एसिड बनाता है। Therefore, when a base react with non-metal oxide, both neutralize each other and resulting in the formation of salt and water. तो base plus non-metal oxide, because non-metal oxide is acidic and when it react with base तो उससे salt and water बनता है। Non-metal oxides are acidic, I told you before. For example, sodium hydroxide gives sodium carbonate and water when it react with carbon dioxide. Sodium hydroxide plus carbon dioxide, they react together and give sodium carbonate. It is a salt plus water. Calcium hydroxide gives calcium carbonate and water when reacts with carbon dioxide. And next reaction is neutralization reaction. An acid neutralizes a base when they react with each other and salt and water are formed. When जब कोई एसिड बेस से रिएक्ट करता है, सॉल्ट एंड वाटर बनता है, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बिकॉज उसमें एसिड की एसिडिक प्रॉपर्टी और बेस की बेसिक प्रॉपर्टी लॉस्ट हो जाती हैं और सॉल्ट बनता है जो न्यूट्रल होता है। सिंस the reaction between acid and base both neutralizes each other and hence it is also known as neutralization reaction. Example, sodium chloride and water are formed when hydrochloric acid react with sodium hydroxide. जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन होता है तो सोडियम क्लोराइड एंड वाटर फॉर्म होता है। Now, next reaction is reaction of acid with metal oxides. Metal oxides are basic in nature, and so that when an acid react with metal oxide, again neutralization reaction takes place and the salt and water is formed. जब मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं, when metal oxide react with acid, it forms salt and water. It means neutralization reaction occurs. So acid plus metal oxide, it will give you salt plus water. For example, calcium is a metal and calcium oxide is a metallic salt. It is basic, and when it react with acid like HCl, it form calcium chloride, a salt, and water is also formed. Now, why the bases show their basic properties? So, what is common in all bases? बेस में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो ये बेसिक करेक्टर शो करती हैं? A base dissociate hydroxide ions in water and which is responsible for the basic behavior of a compound. बेस को पानी में डिसॉल्व करने पर OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस होती हैं और यही OH नेगेटिव आयन बेसिक प्रॉपर्टी शो करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड is dissolved in water, it dissociates into hydroxide ion and sodium ion. Now, the next topic is the dilution of acid and bases. Dilution means
कि अगर कंसनट्रेटेड एसिड है उसमें अमाउंट ऑफ वाटर कम होता है, तो उसको डाइल्यूट करके डाइल्यूट एसिड बनाते हैं, यानी कि जिसमें कि एसिड या बेस कम हो और वाटर एक्सेस में, वाटर ज़्यादा हो। तो एंड इस प्रोसेस को डाइल्यूशन कहते हैं। Dilution of acid and bases, the concentration of the hydrogen ion in acid and hydroxide ion in base per unit volume shows the concentration of acid or base. एसिड या बेस के लिए उसकी स्ट्रेंथ पर यूनिट वॉल्यूम में कितने हाइड्रोजन आयन एसिड के लिए और बेस के लिए कितने हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट है, इससे मेज़र होता है। बाय मिक्सिंग ऑफ एन एसिड टू वाटर, द कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस। जब हम किसी एसिड कंसंट्रेटेड एसिड में वाटर ऐड करते हैं तो पर यूनिट वॉल्यूम हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। और सिमिलरली बाय एडिशन ऑफ बेस टू वाटर, तो जब बेस को वाटर में ऐड करते हैं तो OH आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है और डाइल्यूट बेस बनता है, डाइल्यूट एल्कली बन जाती है। नाउ द डाइल्यूशन ऑफ एसिड बेस इज एक्सोथर्मिक। एसिड या बेस में वाटर का एडिशन उनको डाइल्यूट करने के लिए जब होता है तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इसमें हीट प्रोड्यूस होती है और जो मिक्सचर होता है वो हीटअप हो जाता है, बहुत गर्म हो जाता है। दस एसिड और बेस इज ऑलवेज एडेड टू वाटर एंड वाटर इज नेवर एडेड टू द एसिड और बेस। इसलिए जब हमें एसिड या बेस को डाइल्यूट करते हैं तो हम पानी में जो है एसिड या बेस को ड्रॉप वाइज डालते हैं। कभी भी एसिड या बेस में पानी को ऐड नहीं करते हैं। यदि हम ऐसा करते हैं तो एसिड या बेस में पानी ऐड करने पर ड्यू टू एक्सोथर्मिक रिएक्शन द एसिड और बेस स्प्लैश आउट, इसके छींटे उड़ने लगते हैं जिससे कि सीवियर बर्न्स हो जाते हैं। If water is added to the concentrated acid or base, a lot of heat is generated, which may causes splashing out of the acid and base, and it causes the severe damage, as concentrated acid or base are highly corrosive, क्योंकि concentrated base और acid बहुत corrosive होती हैं। Now यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? वी हैव स्टडीड अबाउट द नेचुरल एंड सिंथेटिक इंडिकेटर, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। लेकिन जो नेचुरल और सिंथेटिक इंडिकेटर्स होती हैं वो एसिड बेस इंडिकेटर्स कहलाती हैं और वो केवल हमें किसी सब्सटेंस के बारे में ये बताती हैं कि एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का बिहेवियर एसिडिक है या बेसिक है, बट दे डू नॉट टेल अस अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। लेकिन वो हमें बेस या एसिड की स्ट्रेंथ कि कितना ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है इसके बारे में कुछ भी नहीं बताती हैं। एंड फॉर दिस वी यूज़ यूनिवर्सल इंडिकेटर। नाउ universal indicator universal indicator shows different colors over a range of pH value from 1 to 14. यूनिवर्सल इंडिकेटर में pH वैल्यू, P क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो pH जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है ये डिफरेंट कलर्स शो करता है
और जबकि पीएच का रेंज जो है वो 1 से 14 तक होता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अवेलेबल both in the form of strips and solution. An universal indicator is the combination of many indicators such as water, propanol, phenolphthalein, sodium salt, sodium hydroxide, and methyl red, bromothymol blue, monosodium salt, and thymol blue, etc. And the color matching chart is supplied with a universal indicator which shows the different colors for different values of pH. pH की different values के लिए जो यूनिवर्सल इंडिकेटर का चार्ट होता है उससे मैच करा के हम उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की pH वैल्यू को अप्रॉक्सीमेट जान सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द पीएच। पीएच की क्या इम्पोर्टेंस है हमारी डेली लाइफ में। पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। पीएच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द डाइजेस्टिव सिस्टम बिकॉज इन एसिडिक मीडियम जो हमारा स्टमक है 1.5 लीटर डाइल्यूट HCl is produced every day in the stomach and which gives a acidic solution in the stomach which helps in the digestion of the proteins. Tooth decay caused by acids. Tooth decay. It is very important in everyday life because जो बच्चे मीठा खाते हैं और फिर अपने टीथ को क्लीन नहीं करते हैं या चीनी यूज़ करते हैं तो उससे जो टूथ डिके होता है, दांतों में कीड़े लगना, सड़ जाना, इट इज़ वेरी कॉमन एंड इट इज़ ड्यू टू बिकॉज जो लैक्टोज होता है, जो शुगर होता है, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ कन्वर्ट इट इनटू द एसिड। बैक्टीरिया जो माउथ में प्रेजेंट होते हैं वो इस शुगर को एसिड में कन्वर्ट कर देती हैं एंड वो एसिड हमारे दांतों को सड़ाता है। द एसिड इट डिकेज द टूथ। ये टूथ डिके का कारण होता है। सॉइल ऑफ पीएच एंड प्लांट ग्रोथ। जो सॉइल होती है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड there are different type of soils but the pH must be maintained for the soil because अगर pH वैल्यू देखते हैं हम इट इज़ मोर एसिडिक और बेसिक। सॉल्ट जो सॉइल होती है वो ज़्यादा एसिडिक या बेसिक होती है देन प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल। जो पौधे हैं, जो फसलें हैं वो अच्छी तरह से उनकी ग्रोथ नहीं होती है एंड सो दैट we must maintain the pH of the soil. It is very important कि हमें pH जो है soil की maintain करनी होती है। Now next topic is salts. Salts are the ionic compounds which are produced after the neutralization reaction between the acid and base. सॉल्ट जो है बहुत इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं। ये न्यूट्रल होते हैं मोस्टली और ये एसिड एंड बेस के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। सॉल्ट्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड देयर आर नंबर ऑफ सॉल्ट्स बट सोडियम क्लोराइड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉमन सॉल्ट एंड विच वी यूज़ एज द टेबल सॉल्ट इन आवर एवरीडे लाइफ। NaCl इसको हम सोडियम क्लोराइड ये कॉमन सॉल्ट कहलाता है जिसका यूज़ हम एवरीडे लाइफ में फूड वगैरह में करते हैं। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्ट्स। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ज़्यादातर सॉल्ट जो है वो सॉलिड होते हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होती हैं। दे मे बी ट्रांसपेरेंट और ओपेक। सॉल्ट या तो ट्रांसपेरेंट होते हैं या फिर ओपेक
ओपेक का मतलब होता है जिसमें से कुछ भी दिखाई ना दे, आर पार होते हैं। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्ट वाटर सॉल्युबल होते हैं। एंड सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन देयर मोल्टन स्टेट ऑल्सो। जो सॉल्ट होते हैं ये सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, बिकॉज ये आयनिक कंपाउंड्स होते हैं और आयंस जो है सॉलिड स्टेट में टाइटली बाउंड रहते हैं। तो सॉल्ट्स इन द एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन, मोल्टन मीन्स पिघली हुई, या फिर हीट करने पर जब ये मोल्टन स्टेट में होते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। द सॉल्ट मे बी salty, sour, sweet, bitter and bitter। तो सॉल्ट जो होते हैं ये या तो सॉल्टी होती हैं या खट्टे भी हो सकते हैं, ये कभी कड़वे होते हैं, अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं सॉल्ट्स में। एंड न्यूट्रल सॉल्ट्स आर ऑर्डरलेस। कुछ सॉल्ट्स न्यूट्रल होते हैं और वो ऑर्डरलेस होती है, जिसमें किसी तरह की भी स्मेल नहीं होती है। जैसे कि हमारा कॉमन सॉल्ट है टेबल सॉल्ट जो हम खाते हैं। सॉल्ट्स कैन बी कलरलेस और कलर्ड। कुछ सॉल्ट कलरलेस हो सकते हैं, कुछ कलर्ड भी होते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट, इट इज़ ऑल्सो ए सॉल्ट and it is blue in color. Now family of the salt. Salts having common acidic or basic radicals are said to belong the same family, और वो एक ही फैमिली के हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड बिलोंग्स टू क्लोराइड फैमिली। ये एंड कैल्शियम क्लोराइड एंड कैल्शियम सल्फेट बिलोंग्स टू कैल्शियम फैमिली। ये दोनों ही कैल्शियम के सॉल्ट हैं। जिंक क्लोराइड एंड जिंक सल्फेट बिलोंग्स टू जिंक फैमिली, क्योंकि इसमें कॉमन है जिंक, तो जिंक फैमिली से बिलोंग करती हैं। नाउ it is enough for today, students, and subscribe the channel, and thank you students for watching video.